Good morning, everyone. Today we will revise our chapter 6, Seed Become a Plant. Okay? Plants are our green friends. Plants are called our green friends. They are very useful to us. They give us food like cereal, wheat. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं अनाज में? Wheat, rice, maize, pulses and pulses. Pulses में अरहर and मूंग and other lentils. Fruits and vegetables. We get oil, medicines, tea and coffee from plants. We get wood from trees. We make house and furniture from wood. We know that plants are major source. Morning, ma'am. Morning. Major source of food. Parts of plant we eat as food are called edible parts of the plant. ठीक है? In sixth chapter, plants are called our green friends because most of our life depend on plants. What we get from plants? Cereals, pulses, oil, medicines, tea, coffee. Everything we get from plants. Everything of our basic needs. We get wood from plants. That's why plants is a essential part of our life and it is a common source of food. ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ फूड. और जो भी प्लांट्स का हम पार्ट खाते हैं दैट इज कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. कैरेट, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, एप्पल, wheat, radish, onion, rice, spinach, pearls और millet. देखिए, this is root, this is stem, this is flower, this is fruit, this is seed part, this is again root, stem, seed, leaves and seed. तो हम plants के different parts हम खाते हैं different तरह से. कभी हम रूट्स में खाते हैं, कभी हम लीव्स के रूप में खाते हैं, कभी हम स्टेम के, कभी सीड्स के रूप में खाते हैं, और कभी हम फ्लावर के रूप में खाते हैं और कभी हम फ्रूट के रूप में खाते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Like all living beings, plants produce their own kind. Let's take a look at how young plants are produced and how they grow. अब देखिए कि यंग प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे वो बड़े होते हैं. रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट प्रोड्यूस यंग प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोड्यूशन. प्लांट्स अपने जैसा ही एक और प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. अब डिफरेंट वेज में रिप्रोडक्शन होता है. सीड्स through spores and through parts of their body like stem, root and leaf. मतलब कुछ पार्ट्स सीड से प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा नया, कुछ स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ स्टेम से, कुछ रूट से और कुछ लीफ से. अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. अ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड. वी नो दैट सीड आर फाउंड इन फ्रूट्स. ठीक है, सबको पता है हर एक फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. Most plant bear flowers. Flowers wither and change into fruits. बहुत सारे plants हैं ना, उनके flowers bear करते हैं. Flower wither हो जाते हैं, गिर जाते हैं और उसकी जगह वो fruit में change हो जाते हैं. Fruits have seed inside them. Seeds germinate and grow into new plant. Fruits के अंदर seeds होती हैं और फिर वो seeds germinate करती हैं और एक new plant में grow करती हैं. New plant from a seed. Look at this picture. सबसे पहले seed को हमने सॉइल के अंदर दबा दिया. उसके अंदर उसके बाद कुछ आफ्टर 5 डेज ये जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. फिर देखिए इसमें से जर्मिनेशन का प्रोसेस बढ़ता एक छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है. फिर इसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, न्यू प्लांट स्टार्ट हो जाता है. अब यहाँ पे दिया हुआ है सोक ओवरनाइट सम ग्राम सीड इन वाटर. The seed absorb water through tiny holes and swell up. Now carefully remove the seed coats and observe. अगर आप ओवरनाइट एक ग्राम सीड को सोक करके देखेंगे, आप क्या देखते हैं कि सीड एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, जिसके अंदर जो टाइनी होल्स होते हैं उनके थ्रू, और स्वेल अप हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है, फूल जाता है. और अगर आप उसमें से उसके सीड कोट को हटा के देखेंगे तो आप क्या देखते हैं
यहाँ पे देखिए एक बेबी शूट निकलता है और एक बेबी रूट, इसी से न्यू प्लांट इमर्ज होता है। A seed has a thick outer covering called the seed coat. इसकी एक thick outer covering है जिसको हम seed coat भी बोलते हैं. It protects the seed. On one side of the seed there is a scar. This is the place where the seed is attached to the fruit. There is a small hole on the top of the scar. Water enters through this hole. अब देखिए outer covering को seed coat बोलते हैं. ये seed को protect कर रही है. यहाँ पे देखिए एक साइड में यहाँ पे स्कार है, ठीक है, जहां से सीड अटैच होता है फ्रूट के साथ. देयर इज अ स्मॉल होल ऑन द टॉप ऑफ द स्कार. यहाँ पे एक टाइनी होल है जहां से वाटर एंटर होता है और ये सीड क्या स्वेल अप हो जाता है. टाइनी लीव्स कॉल्ड कॉटलीडॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड. अ बेबी प्लांट इमर्ज्ड. ठीक है, छोटे छोटे लीव्स होते हैं उनको ये देखिए कॉटलीडॉन्स बोलते हैं सीड के अंदर, और इससे एक बेबी प्लांट इमर्ज होता है. बेबी प्लांट प्रेजेंट बिटवीन द कॉटलीडॉन्स. द बेबी प्लांट कंटेन्स अ बेबी शूट एंड अ बेबी रूट. द कॉटलीडॉन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. अब बेबी प्लांट के अंदर बेबी शूट भी है और बेबी रूट भी है. देखिए जैसे इस पिक्चर के अंदर दिखा रखा है, बेबी रूट एंड बेबी शूट. कॉटलीडॉन क्या करता है, बेबी प्लांट के लिए स्टोर करके रखता है फूड को. नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड. द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. बेबी प्लांट से मतलब बेबी प्लांट की ग्रोथ एक सीड से जब होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन. अ सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, वार्म टू जर्मिनेट. सीड को क्या चाहिए, राइट अमाउंट में वाटर चाहिए और वार्मथ चाहिए. अगर आप बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में सीड को रख देंगे तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा, और बहुत ज्यादा गर्म में भी रखेंगे तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा. तो उसको राइट अमाउंट में चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और वार्मथ भी चाहिए, तभी सीड का जर्मिनेशन होता है. यहाँ पे देखिए द सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द सीड होल. सेकेंड, द रूट स्टार्ट ग्रोइंग इट्स ग्रोस डाउनवर्ड्स. रूट स्टार्ट हो रही है ग्रो करना, देखो ये डाउनवर्ड्स ग्रो हो रही है. थर्ड, द शूट स्टार्ट ग्रोइंग, इट ग्रोस अपवर्ड्स. अब देखिए रूट तो डाउनवर्ड्स है और जो शूट है वो अपवर्ड्स जा रही है. द लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम, दे स्टार्ट मेकिंग फूड नाउ. अब यहाँ पे देखिए स्टेम पे लीव्स ग्रो होने लगे हैं और ये प्लांट के लिए फूड बनाना शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको खुद घर पे कुछ सीड्स को ओवरनाइट सोक करके रखना है, फिर इनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर, सनलाइट, एयर और वार्मथ मिलेगी तो इनका जर्मिनेशन हो जाएगा. तो ये एक्टिविटी आपको खुद घर पे करके देखनी है कि कैसे सीड जर्मिनेट होते हैं. यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सीड देखिए, सीड विल जर्मिनेट. उसको वाटर, एयर और सनलाइट और वार्मथ प्रॉपर राइट अमाउंट में मिली है तो सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अ सीड नीड राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. ठीक है, किसी भी सीड की जर्मिनेशन के लिए राइट अमाउंट में वाटर, एयर एंड सनलाइट और जरूरी है. बाउल 4 में सीड जर्मिनेट हुए, क्यों, क्योंकि उसको राइट अमाउंट में वाटर, एयर एंड सनलाइट मिले जो कि सीड के लिए बहुत जरूरी थी. और फर्स्ट में सीड को वाटर नहीं मिला, सेकंड में सीड को वार्मथ नहीं मिली और थर्ड में सीड को एयर नहीं मिली. तो इस तरह से अगर सीड को एक भी चीज नहीं सही ढंग से मिलेगी तो उसका जर्मिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा. अब मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, ज्यादातर प्लांट किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, सीड से. ओके, what is necessary for the germination of a seed? What is necessary? All of these. All of these. Yes, air, water and warmth. ये सब चीजें चाहिए वाटर को सीड को जर्मिनेट करने के लिए. नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड. सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं आपको पता है, आपने पढ़ रखा है ये. वी नो दैट प्लांट्स कांट मूव ऑन देयर ओन. कभी भी प्लांट्स अपने आप तो चल नहीं सकते ना,
उनको डिस्पर्स होने के लिए कोई ना कोई रीजन चाहिए, किस तरह से वो डिस्पर्स होते हैं हम ये पढ़ेंगे। सो नेचर हैड डेवलप्ड वेज टू स्कैटर देयर सीड्स, तो इस तरह से नेचर ने अपने आप ही कुछ वेज निकाल लिए हैं कि सीड एक ही जगह पे ना होके डिस्पर्स हो जाए, स्कैटर हो जाए। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी पेरेंट प्लांट से सीड का स्कैटर हो जाना, वहां से दूर जाना, इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड का डिस्पर्सल। Seeds are dispersed by agents such as wind, water, birds, insects and animals. अब seeds के एजेंट कौन से हैं डिस्पर्स होने के? ये हैं विंड, हवा से, पानी से, बर्ड से, इंसेक्ट और एनिमल्स के थ्रू सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। These agents are called agents of dispersal. इन एजेंट को हम क्या कहेंगे? ये एजेंट है डिस्पर्सल के। यस, विंड। अब हवा से कैसे होते हैं? Some seeds are light and special tufts of hair wings that help them to carried away by the wind. अब कुछ सीड्स इतने लाइट होते हैं कि हवा से ही वो उड़ के चले जाते हैं, जैसे हवा चली और इतने लाइट होते हैं हवा से उड़ के वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते हैं, तो डिस्पर्सल हो गया। इसमें एग्जांपल है कॉटन, डैंडियन और मदार। ये देखिए इनके ऊपर हेयर होते हैं जिसकी वजह से बहुत लाइट होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। हिप्टेज, मैपल एंड साइकामोर सीड्स हैव विंग अटैच्ड टू देम। ये इनके, ये देखो मदार है, कॉटन है और हिप्टेज है, इनके विंग्स लगे होते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली स्कैटर हो जाते हैं। सेकेंड इज वाटर। वाटर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ प्लांट लिविंग इन वाटर और प्लेस नियर इट। द लोटस फ्रूट हैज a spongy bud and the coconut fruit and the coconut fruit has a thick fibrous coat. ठीक है, अब वाटर भी हेल्प करता है प्लांट के डिस्पर्सल में। जो भी लिविंग इन वाटर, जो प्लांट्स पानी में होते हैं, ठीक है, यहाँ इसके आसपास के इलाकों में होते हैं, जैसे लोटस है उसका एक स्पंजी पार्ट होता है और कोकोनट के थिक फाइब्रस कोट होता है। These special parts enable the lotus and the coconut fruit to float on water. इससे क्या होते हैं, ये जो स्पेशल पार्ट्स हैं लोटस और कोकोनट फ्रूट के, उसको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। So when a coconut falls from the tree into water, it floats and travel with the water to far off place. जब एक कोकोनट पानी में गिरता है तो ये फ्लोट करने लग जाता है और उस प्लेस से दूर वाले प्लेसेस पे चला जाता है। एनिमल्स, अब हम एनिमल्स के थ्रू कैसे देखिए सीड का डिस्पर्सल होता है। सीड्स आर आल्सो डिस्पर्स्ड बाय एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड बर्ड। ठीक है, अब एनिमल्स के थ्रू सीड का डिस्पर्स होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड बर्ड, इसमें ह्यूमंस और बर्ड भी इंक्लूड होते हैं। Humans and animals eat juicy and fleshy fruits like mango, apple and watermelon and throw away their seeds. ठीक है, अब जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, किसी भी फ्रूट का जो फ्लैशी पार्ट है या जूसी पार्ट है वो खा लेते हैं और उसके सीड्स को थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, हवा से, मिट्टी से, पानी से, तो इस तरह से उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। Seeds of plant like xanthium, tiger nail and spear grass have hooks or spines. They stick to the hairy skin of animals or clothes of humans and carry them. अब ये देखिए xanthium seed और tiger nail seed दे रखे हैं। इसकी hairy skin है, इनके ये देखो hooks हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स और एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं या ह्यूमंस के क्लोथ के साथ स्टिक हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब कहीं वहीं पे जाके गिर जाते हैं और वहां पे इनको ये वापस से जर्मिनेट हो जाते हैं। Some seeds are eaten by birds and other animals. These seeds have a tough seed coat so they don't get digested. अब कुछ बर्ड्स हैं जो अलग अलग तरह के सीड्स खाती हैं और उनके जो सीड कोट होते हैं ना बहुत टफ होते हैं कुछ सीड्स के, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाते बर्ड से। When birds and other animals swallow them, they come out intact in their waste material. कभी कभी बर्ड्स और दूसरे एनिमल उनको स्वैलो तो कर लेते हैं, निकल तो लेते हैं, लेकिन उनको वो डाइजेस्ट नहीं होते तो उनकी बॉडी से वो बाहर निकल आते हैं, लाइक उनके वेस्ट मटेरियल या उनके ड्रॉपिंग्स के जैसे। The seeds are dispersed to other places. इस तरह से बर्ड ने कहाँ से उड़ के कहाँ चली जाती है बर्ड्स, तो फिर
इस तरह से उनकी वेस्ट मटेरियल के थ्रू उनकी बॉडी से वो बाहर आ जाते हैं और वहां पे जाके उग जाते हैं, और इस तरह से बर्ड्स के थ्रू भी इनका डिस्पर्सल हो जाता है। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, सम फ्रूट बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई। ठीक है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं जब वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब पी बोर्ड है, पहले तो जब ये एकदम जब सूख जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब ये बर्स्ट हो जाएगा, अपने आप फट जाएगा और इसके जो सीड्स हैं गिर जाएंगे। ऐसे ये बालसम फ्रूट की भी एक्सप्लोड हो जाता है, उनके इनके सीड्स गिर जाते हैं और अपने आप उग जाते हैं। द डिस्पर्सल ऑफ पी पोड, जेरेनियम एंड बालसम सीड्स टेक प्लेस बाय एक्सप्लोजन। अब इस तरह से इनका डिस्पर्सल एक्सप्लोजन के थ्रू भी होता है। तो ये डिफरेंट वेज बताए थे कि किस तरह से इनका जो डिस्पर्सल होता है या स्कैटर होते हैं सीड्स। सेकेंड इज न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। देखिए स्पोर्स से न्यू प्लांट कैसे होते हैं। सम प्लांट्स सच एज ferns एंड mosses don't have flowers, they don't produce seed। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर भी नहीं है, उनके सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, ईच स्पोर ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हर स्पोर से देखिए यहाँ पे एक नया प्लांट इमर्ज होता है। न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब और भी कई पार्ट्स हैं जहां से नए प्लांट्स इमर्ज होते हैं। Besides seeds, new plants can also be grown from other plants, other parts of a plant body. The method of obtaining new plant from the leaves, stem and roots of the parent plant is called vegetative propagation. यानी method of obtaining new plant from the leaves, stem and root. न्यू प्लांट का ऑब्टेन होना कौन सा मेथड से, लीव से, स्टेम से या रूट से, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी जब एक प्लांट लीव से, स्टेम से या रूट से एक नया प्लांट इमर्ज करता है, नया प्लांट बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है कि अगर हम take a sweet potato which is a part of parent plant and insert toothpicks in it. Take a glass filled with water and place the sweet potato on the mouth of the glass in such a way that one part of the sweet potato remains immersed in water. Put this glass at a place where it get fresh air and sunlight. After a few days you see roots come out of the sweet potato. Soon a small plant grows out of it. Here we see the root of a plant producing a young plant. यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे, ग्लास को फिल कर लेंगे, उसमें टूथपिक लगा के इस तरह से एक स्वीट पोटैटो को उसमें स्टैंड कर देंगे। उसको स्वीट पोटैटो को हम फ्रेश एयर में रखेंगे जहाँ पे उसको सनलाइट भी मिलेगी, और कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि इसमें से रूट्स ग्रो होने लग जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से देखिए लीव्स भी स्टार्ट हो गए, नीचे रूट्स हैं, ऊपर लीव्स। तो इस तरह से एक न्यू प्लांट कैसे ग्रो होता है, रूट्स के थ्रू। सेकेंड इज न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे होते हैं, पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन, ये सारे स्टेम प्लांट हैं। These are underground stem. Food is stored in these stems. The underground stem of potato is called tuber. अब देखो फूड है, इनकी स्टेम में स्टोर होता है। जो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबर। पोटैटो एंड जिंजर हैव बड्स। ठीक है, बड्स होते हैं on their surface. Under suitable condition each bud grows into a new plant. The buds of potatoes are called eyes. Any piece of a potato which has an eye can grow into a new plant when provided with suitable condition. अब यहाँ पे देखिए पोटैटो के आई होती है, आपने बहुत बार देखा होगा, पोटैटो के एक वाइट पोर्शन सा निकला होता है, उसको उसकी पोटैटो की आई बोलते हैं। तो हर आई से एक नया प्लांट इमर्ज होता है। इनके बड है। अब अगर इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है, इसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड एयर मिलता है, तो पोटैटो से देखिए हर बर्ड से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये अंडरग्राउंड न्यू पोटैटो प्लांट, ऊपर तो पोटैटो प्लांट आते जाएंगे और नीचे पोटैटोज बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से स्टेम से भी ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देखिए अनियन का भी दे रखा है। न्यू प्लांट्स ऑफ अनियन ग्रोज फ्रॉम बल्ब्स। अनियन के बल्ब से न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल,
यहाँ पे अनियन को भी आप ये सब आप घर में भी करके देख सकते हैं। आप अनियन को ऐसे सॉइल के अंदर डिग करके ऐसे दबाएंगे या जिंजर को करेंगे तो आपको ऐसे ऊपर से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। जब लेकिन इनको पर्टिकुलर कंडीशंस भी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड एयर भी चाहिए। राइट अमाउंट में अगर इनको प्रॉपर कंडीशन मिल जाएंगी तो न्यू प्लांट्स मर्ज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स। लीव्स से कैसे न्यू प्लांट होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ये, कुछ ही प्लांट्स हैं जो लीव से ग्रो करते हैं। द ब्रायोफिलियम प्लांट कॉमनली कॉल्ड पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलियम जिसको कॉमनली पत्थर चट्टा बोला जाता है, हैज बर्ड्स ऑन द एजेस मार्जिन्स ऑफ इट्स लीव्स। अब इसके देखिए लीव्स के एजेस, किनारे पे देखिए बर्ड्स होते हैं, तो यहाँ से नए नए प्लांट इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। When these birds fall on moist soil, they produce new plant. और अगर moist soil में ये प्लांट्स गिर जाते हैं तो अपने आप वहां से नए नए इनके बर्ड से नए प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए सॉइल के अंदर देखिए हर प्लांट, हर लीफ पे इनके न्यू बर्ड्स निकल रहे हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। Plants like rose, hibiscus, bougainvillea, sugar cane and cotton have buds on their stem. अब यहाँ पे देखिए इनके बर्ड्स होते हैं स्टेम पे, जहां से न्यू प्लांट इमर्ज होते हैं। द स्मॉल कटिंग ऑफ दीज प्लांट आर कॉल्ड स्टेम कटिंग। छोटी छोटी कटिंग लगाई जाती है इनकी प्लांट्स की, स्टेम कटिंग जो बोलते हैं। When we plant a stem cutting having 1 or 2 buds into the soil, after few days the stem cutting grows into a new plant. जब हम एक स्टेम कटिंग प्लांट को कि 1 या 2 बर्ड्स को सॉइल के अंदर लगा देते हैं, कुछ दिन के बाद आप देखोगे द स्टेम कटिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पे देखिए शुगर केन की स्टेम है, फिर कुछ स्टेम कटिंग को यहाँ पे उन्होंने ग्रो कर दिया, फिर इसमें से थोड़े दिन बाद में इमर्ज होने लग गए हैं प्लांट्स, और ये देखिए शुगर केन प्लांट। तो इनको सीड्स की जरूरत नहीं है, ये स्टेम से ग्रो कर जाते हैं। Potato and onion are edible stems. Which of the following plant has spines? किसके होते हैं? Xanthium. Spines किसके होते हैं? Xanthium. Plants from foreign countries. अब सारे प्लांट तो हमारी कंट्री में नहीं ना ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट हमने फॉरेन कंट्री से लेके आए हमारी कंट्री में। Many plants we see today are not originally from India. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हम खा रहे हैं, वो उनका ओरिजिन इंडिया से नहीं हुआ है। They have their origin in foreign countries. उनका ओरिजिन फॉरेन कंट्रीज में हुआ है। When people from foreign countries migrate and settle in India, they bring new plants to India and cultivate them. जब लोग फॉरेन कंट्री से मतलब माइग्रेट होके इंडिया में सेटल हुए तो अपने साथ वो कुछ प्लांट्स भी ले आए और वहाँ पे यहाँ आके उन्होंने उनको कल्टीवेट कर दिया। जैसे कि चिली पेपर, मिर्च, originated in America and was brought to India by Portuguese trader. जो अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है और यहाँ इंडिया कौन लेके आया उनको? पुर्तगीज ट्रेडर। The British traders of East India Company brought tea from China. जो ब्रिटिश ट्रेडर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, वो चाइना से टी लेके आए एंड इंट्रोड्यूस इन इंडिया, और इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नेम है जो कौन कौन सी कंट्रीज से आए हैं पढ़ते हैं। टी फ्रॉम चाइना जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, कॉफी फ्रॉम अफ्रीका, लेडी फिंगर फ्रॉम अफ्रीका, कॉलीफ्लावर फ्रॉम यूरोप, पीस फ्रॉम यूरोप, पोटैटो नॉर्थ अमेरिका, टोमेटो साउथ में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं जो हमारी कंट्री के नहीं है, ये हमारे कंट्री में बाहर से आए हैं। ये देखिए हमारा वर्ल्ड का मैप भी दे रखा है इसमें आपके, इसमें 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस के नेम भी दे रखे हैं। ओके, It is not necessary that plants brought from foreign countries are good for India. Let's look at some example. ये जरूरी नहीं है कि जो प्लांट्स फॉरेन कंट्री से आए हैं हमारी कंट्री के लिए अच्छे हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में, ऐसे प्लांट भी आ गए हैं जो हमारी कंट्री के लिए अच्छे नहीं रहे।
उन्होंने क्या किया देखते हैं। द ब्रिटिशर्स इन इंडिया ब्रॉट अ प्लांट नेम लंटाना। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने अपने साथ एक प्लांट लेके आए लंटाना फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इट गार्डन इन कोलकाता सिटी, और इसको गार्डन में प्लांट कर दिया कहाँ, कोलकाता सिटी में। Lantana spreads very fast and does not allow anything else including grass or any other plant to grow. अब लंटाना प्लांट इतना फास्टली ग्रो करने लग गया कि इसने दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने ही नहीं दिया, यानी सारे जो न्यूट्रिशन थे सॉइल के वो लंटाना प्लांट ले लेता, और जिससे कि अदर प्लांट्स थे वो ग्रो नहीं कर पाते थे अच्छे से। Hence, the spread of lantana led to the decline of grass-eating animals, and this indirectly also affected the population of carnivorous animals like tiger and lions. अब लंटाना प्लांट ने क्या करना शुरू कर दिया कि ग्रास उगनी बंद हो गई। अब ग्रास पे मोस्टली जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो सारे डिपेंडेंट हैं, तो जब ग्रास उगनी बंद हो गई तो ग्रास ईटिंग एनिमल की पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा, और इससे क्या हुआ, कार्निवोरस की पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा लाइक टाइगर और लायंस। तो एनिमल्स के पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इसका लंटाना प्लांट। A British officer brought eucalyptus from Australia and planted in the Nilgiri Hills in Tamil Nadu. अब एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो अपने साथ यूकेलिप्टस ले आए ऑस्ट्रेलिया से, और उसको उन्होंने नीलगिरी हिल्स में जो कि तमिलनाडु में है वहां उन्होंने प्लांट कर दिया। A eucalyptus tree consumes 90 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। अब एक दिन में यूकेलिप्टस का प्लांट कितना वाटर कंज्यूम कर लेता है, 90 लीटर। ड्यूरिंग समर एंड टाइम्स ऑफ ड्रॉट इट रूट्स कैन ग्रो डाउन अप टू 30 फीट। और समर के टाइम पे या ड्रॉट के टाइम पे तो इसकी रूट्स क्या थी, 30 फीट डाउन चली जाती। इट डिप्लेट्स द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर प्लांट्स एंड ट्रीज टू सर्वाइव। इससे क्या हुआ कि इन्होंने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत नीचे जाके अपने लिए तो पानी ढूंढ ही लेता था, और दूसरे प्लांट और ट्रीज को सर्वाइव करने में भी डिफिकल्टी होने लगी, क्योंकि वो खुद तो हो जाता लेकिन दूसरे प्लांट और ट्रीज को सर्वाइव नहीं करने देता। यहाँ पे देखिए लंटाना प्लांट्स की पिक्चर है, ये यूकेलिप्टस है और ये पार्थेनियम है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पार्थेनियम के बारे में। इंडिया इम्पोर्ट्स व्हीट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से व्हीट इम्पोर्ट होती थी। सम सीड्स ऑफ पार्थेनियम come along with it and spread as weed in our country। इसके साथ कुछ पार्थेनियम के सीड आ गए और स्प्रेड कैसे हो गए, as weed in our country। These weeds reduce crop produce। They also cause allergic respiratory problems in humans and livestock। अब ये weeds ने क्या किया, क्रॉप्स को रिड्यूस कर दिया, यानी यही weeds ही बढ़ने लग गए और क्रॉप्स को प्रोड्यूस होने में डिफिकल्टी होने लगी। तो इससे एलर्जेटिक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी, जिन लोगों को एलर्जी होने लगी, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तो इस तरह से सारे प्लांट जो बाहर से आए हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं थे, इन प्लांट्स के कुछ बैड इफेक्ट भी थे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम रिवाइज करेंगे। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट एज फूड आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट्स के हम पार्ट एज अ फूड खाते हैं उनको एडिबल पार्ट्स बोले जाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्लांट्स अपने जैसा दूसरा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीफ, स्टेम एंड रूट। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, और उनका जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे कि लीफ है, स्टेम है और रूट है, इनके थ्रू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अगर बेबी प्लांट की मतलब बेबी प्लांट की ग्रोथ होना एक सीड से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन। वाटर, एयर एंड सनलाइट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब किसी भी सीड की जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वाटर, एयर एंड सनलाइट, यानी राइट अमाउंट में उसको वाटर चाहिए, एयर चाहिए, वार्मथ चाहिए जो कि सनलाइट से मिलती है, और अगर ये सारी चीजें किसी भी सीड को मिलती हैं तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है।
The scattering of seed away from the parent plant is called dispersal of seed. किसी भी सीड का अपने पेरेंट प्लांट से स्कैटर हो जाना, दूर हो जाना, इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. तो हमने ये वेज भी पढ़े थे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिस्पर्स होते हैं थ्रू वाटर, एनिमल्स, थ्रू एयर. विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स आर द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. जो अभी मैंने आपको बताया कि विंड, वाटर, एयर और इंसेक्ट से सीड का डिस्पर्सल होता है. द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट फ्रॉम द लीव, स्टेम एंड रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यानी द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, एक न्यू प्लांट ऑब्टेन करना कहाँ से? लीव से, स्टेम एंड रूट. वो भी पेरेंट प्लांट के लीव से, स्टेम और रूट से एक न्यू प्लांट का ऑब्टेन करना, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. अब यहाँ पे देखिए, विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ दिस पिक्चर. इस पिक्चर में कौन सा एडिबल पार्ट है? पोटैटो के हम क्या मानते हैं? स्टेम. यस. Stem. ओके ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा. आज हमने इस चैप्टर में सीड की जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, उसका डिस्पर्सल के बारे में पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे जो प्लांट से इमर्ज होते हैं, और किसी भी प्लांट को जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वाटर, एयर, वार्मथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए कि. और हमने ये भी पढ़ा कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, जैसे सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, और उनके ग्रेन्स खाते हैं हम, उनके स्टेम खाते हैं, उनके फ्लावर्स खाते हैं, उनके फ्रूट खाते हैं. तो ये हमने सीड बिकम ए प्लांट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज? Yes, ma'am. ओके ओके बेटा.